So today's class is of short duration. Now you see that next topic is structures of simple lattices and X-ray intensities. Now you see intensities of X-ray reflections are important for two reasons. एक तो ये है कि अगर हमें इंटेंसिटीज नोन हो of XRD pattern, so we can determine unknown crystal structure. This is the first importance of intensities of reflections, that if intensities of various reflections are known to us, we can determine unknown crystal structure of material. And second importance of intensities is that intensities are helpful in finding the powder finger prints ultimately to characterize different materials. So intensities of various XRD reflections are important in the two senses. One is to determine unknown crystal structure and then to characterize various materials. Let us explain. The resultant intensity is scattered from large number of atoms of crystal. अब क्रिस्टल में एटम्स हैं and all atoms जो हैं क्रिस्टल के they scattered X-rays. अब क्वेश्चन है कि स्कैटरिंग तो सारे एटम से होगी, बिकॉज क्रिस्टल में एटम्स हैं, ऑल एटम्स आर स्कैटरिंग एक्सरेज. तो जितने भी स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उन स्कैटर्ड एक्सरेज की रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. वी हैव टू एक्सप्लेन हियर रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्कैटर्ड फ्रॉम large number of atoms of crystal. Now you see the interaction which takes place between X-rays and crystal involves electrons in the crystal. अब क्वेश्चन है इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एक्सरेज और क्रिस्टल में स्कैटरिंग हो रही है. दिस इज इंटरेक्शन. इंटरेक्शन बिटवीन एक्सरेज एंड क्रिस्टल मींस स्कैटरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन एक्सरेज एंड क्रिस्टल. तो क्वेश्चन इसमें ये है दैट व्हाट इज देयर इन क्रिस्टल व्हिच स्कैटर एक्सरेज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्रिस्टल में जो एक्सरे स्कैटर करते हैं. सो अल्टीमेटली क्रिस्टल में एटम्स हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड इट इज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्कैटरिंग एक्सरेज. The more the electrons an atom possess, more strongly will it scatter X-rays. जब हम ये कह रहे हैं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्सरे स्कैटर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ that those atoms which possess more number of electrons, they can cause X-rays more strongly. So more the electron an atom possess, more strongly will it scatter X-rays. The effectiveness of an atom in scattering X-rays is called scattering factor and is given symbol F0. So it is very clear that scattering factor depends upon atomic number, because scattering factor depends upon number of electrons present in an atom, and number of electrons present in the atom depends upon atomic number. Higher the atomic number of an element, more number of electrons it contains and more strongly it can scatter X-rays. So scattering factor basically it depends upon atomic number, but also depends on Bragg's angle theta and wavelength of X-ray radiation. So three parameters are there on which scattering factor depends. Atomic number, number one, this is major factor, atomic number. Second, Bragg's angle theta. And third is wavelength of X-ray radiation.
as Bragg's angle theta increases, scattering power of atom decreases. Because it is clear now कि planes X-ray तभी scatter करता है if that is inclined at an angle Bragg's angle theta. If a plane is not at an angle of Bragg's angle theta, then diffraction does not takes place. For diffraction to occur, plane must be oriented at certain Bragg's angle theta. And question है how scattering power is related to Bragg's angle theta. And relationship between Bragg's angle theta and scattering power is as Bragg's angle theta increases, scattering power go on decreasing. Both are inversely proportional. Now reason क्या है? That decrease in scattering power with angle theta is due to finite size of atom. Electrons are distributed around the nucleus. And as theta increases, X-rays scattered by an electron in one part of atom increasingly out of phase with those scattered in different part of electron cloud. Now you see कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्कैटर करते हैं एक्सरेज को, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ता है तो एक्सरे स्कैटर जो हो रही हैं बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ न्यूक्लियस, मे बी दैट स्कैटरिंग इज आउट ऑफ फेज फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present in other part around the nucleus. And that's why the more Bragg's angle theta, then more and more number of electrons will become out of phase. And ultimately what happens, that scattering power decreases. ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो स्कैटरिंग काज करते हैं उनकी अपोजिशन नहीं होती. इलेक्ट्रॉन्स तो एवरीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है. एंगल थीटा बढ़ने से एक साइड इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे स्कैटर कर रहे हैं एक पार्ट में, वहां पर कोई स्कैटरिंग हो रही है, तो दूसरे पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस वो भी स्कैटरिंग कर रहे हैं. मे बी टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग आर आउट ऑफ फेज, एंड दैट्स व्हाई विद इंक्रीज इन Bragg's angle theta the scattering power go on decreasing, because with increase in Bragg's angle theta that more and more electron will come out of phase, which are causing scattering, and therefore scattering power decreases. Now you see, it is probably instructive to show an example of why intensities are important. We know heavier an atom is, the better it is to scatter X-rays. हैवियर द एटम का मतलब होता है कि जितना एटॉमिक मास ज्यादा होगा, और अल्टीमेटली मोर एटॉमिक मास जनरली मोर एटॉमिक नंबर आल्सो. तो हैवियर एटम जो जनरली होते हैं दे आर हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, मींस दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अल्टीमेटली हैव हायर स्कैटरिंग पावर. तो हैवियर द एटम इज बेटर, इट कैन स्कैटर एक्स-रेज. सो वी थिंक planes which contains heavier atoms, the planes which contain heavier atom should scatter X-rays more strongly and hence should give rise to more intense reflection. Right? This is a very important point, that heavier the atom, more strongly it can scatter X-rays. It means planes containing heavier atoms will give more intense reflections. They should give reflections of higher intensity. Why? Because those planes which contain heavier atoms, they can scatter X-rays more strongly, ultimately gives more intense reflections. Now for example NaCl है, तो एक ही कंपाउंड में NaCl में Cl एटम्स जो होंगे वो किसी प्लेन में प्रेजेंट होंगे, सोडियम एटम भी कहीं प्रेजेंट होंगे. तो एक ही कंपाउंड में दो टाइप के एटम प्रेजेंट है.
Cl atom heavier है, which contains 17 electrons. सोडियम एटम थोड़ा सा लाइटर है, which contain 11 electrons. तो अल्टीमेटली जिन प्लेन्स के ऊपर Cl एटम प्रेजेंट होंगे, those planes reflect, they scatter X-rays more strongly compared to where sodium atoms are present. Because this is the question now, if planes containing heavier atoms should give rise to more intense reflections. This is true, but overall picture is more complicated because there are interactions with reflected beams from other planes and they may produce destructive interference. क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जिन प्लेन्स के ऊपर हैवी एटम्स होंगे, मीन जिन प्लेन्स के ऊपर हैवी एटम मीन जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दे कॉज मोर स्कैटरिंग, अल्टीमेटली दे शुड गिव मोर इंटेंस रिफ्लेक्शंस. हमेशा ऐसा नहीं होता. हो सकता है एक प्लेन है, उसमें हैवी एटम प्रेजेंट है एंड दैट इज कॉजिंग रिफ्लेक्शन, और वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, इंटेंसिटी हाई आएगी. बट हो सकता है ऑन द अदर हैंड कोई और प्लेन हो बीच में, वो भी एक्सरे स्कैटर कर रहा हो, बट उसकी स्कैटरिंग और जिस प्लेन के ऊपर हैवी एटम है उसकी स्कैटरिंग आउट ऑफ फेज हो, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो वीक रहेगी. हाँ, अगर ऐसा हो कि प्लेन हो, उसमें हैवी एटम्स प्लेन प्रेजेंट हो, स्कैटरिंग हो, बट उस स्कैटरिंग को कोई अदर स्कैटरिंग कैंसल नहीं कर रही, फिर तो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आएगी. बट हमेशा ऐसा नहीं होता. मे बी ए प्लेन कंटेनिंग हैवी एटम्स, तो दैट इज क्लियर कि दैट शुड scatter X-rays more strongly, means that should give X-rays of high intensity. That is clear. But हो सकता है on the other hand there are some planes present which are also causing scattering, but that scattering is out of phase from the plane which contain heavy atoms. So ultimately scattering some part will cancel out. तो resultant intensity आनी ज्यादा चाहिए थी, ultimately maybe कम आ सकती है. So we take an example here to explain it. We can illustrate this effect by considering diffraction patterns produced by NaCl and KCl crystals. NaCl crystal unit cell is shown in figure 1 like this. This is NaCl. NaCl has face-centered cubic structure, means Cl negative ions, this is shown by blue circles, occupying corners, 8 corners, and center of each face. This is the center of top face, center of bottom face, center of left face, center of right face, center of front face, center of back face. So you can see blue circles means chloride ions. They are occupying corners and center of each face. Whereas sodium atoms occupying edge centers, edges 12 हैं और हर edge center के ऊपर सोडियम आयन प्रेजेंट है और एक सोडियम आयन बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है. So you see that this NaCl has face-centered cubic structure. Now you see, can you tell me, anyone who can tell me that NaCl structure में atoms are occupying face center also, body center also? Why we recognize it as face center, not body center? You see, आप यूनिट सेल अगर देखें तो यहाँ पर एटम्स जो हैं दे आर ऑक्युपाइंग फेस सेंटर्स आल्सो, बॉडी सेंटर आल्सो. तो हम इसको फेस सेंटर क्यूबिक क्यों कहते हैं? व्हाई नॉट बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर? एनीवन हु कैन टेल मी?
सर क्योंकि बॉडी सेंटर में जो HKL है उसका वो आना चाहिए, इवन आना चाहिए, इवन नंबर। नहीं, इवन नंबर वो दैट यू आर सेइंग अबाउट रिफ्लेक्शंस कौन सी ऑब्जर्व होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिफ्लेक्शंस व्हिच आर ऑब्जर्व व्हिच आर एब्सेंट। आई एम टॉकिंग ऑफ NaCl का ये यूनिट सेल है एंड एटम्स आर ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स, एज सेंटर्स, फेस सेंटर्स, बॉडी सेंटर। बट मैं स्ट्रक्चर को बोलता हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मैं इसको बॉडी सेंटर क्यूबिक क्यों नहीं बोल रहा, ऑल्दो एटम बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट है। माय क्वेश्चन इज you leave about whether the reflections are observed or not, उसको छोड़ो आप। आई एम टॉकिंग ऑफ यूनिट सेल ओनली। आपने 12th में किया होगा NaCl स्ट्रक्चर, और वहां किया होगा कि Cl नेगेटिव एंड ऑक्यूपाइंग कॉर्नर सेंटर ऑफ ईच फेस एंड सोडियम एंड ऑक्यूपाइंग आई सेंटर एंड बॉडी सेंटर। बट हम वहां कहते हैं कि NaCl हैज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट इट इज हैविंग बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर आल्सो, सर हम बिकॉज़ इसको एटम्स आर ऑक्यूपाइंग बॉडी सेंटर आल्सो। हाँ सर हम इसको क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। क्यों? क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो बॉडी सेंटर पे तो है नहीं है, वो फेस सेंटर पे और एजिस पे हैं। नहीं, व्हाई वी तो टॉक ऑफ Cl ओनली, व्हाई नॉट Na? सर Na के जो एटम्स है वो कॉर्नर पे ना है। अगर हम उसको एक ऐसा क्यूब बनाएं जहां पे जो सोडियम के आयन्स हैं वो कॉर्नर्स पे आए तो हमें फेस सेंटर ही मिलेगा। You see, remember one thing more. When you talk of solids, solids में atoms closely packed होते हैं। क्लोज पैकिंग दो टाइप की जनरली होती है, HCP, CCP, hexagonal close packed structures, cubic close packed structures। तो होता क्या है कि जो what are the cubic close packed structures that has layers ABC, 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 so on। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लेयर होती है ए बी सो ऑन। पहले ए लेयर, फिर बी, फिर दोबारा ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। और क्यूबिक क्लोज पैक में होता है ए बी सी, फिर दोबारा ए बी सी मीन एवरी फोर्थ लेयर रिपीट होती है। और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एवरी थर्ड लेयर रिपीट। ऐसे होता है ना क्लोज पैकिंग में। अब क्या होता है, जब आप एटम्स क्लोजली पैक करते हैं उनमें वाइड बनते हैं पैकिंग के बीच में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, राइट। अगर तो हमारे पास सॉलिड कोई एलिमेंट है लाइक कॉपर और मे बी आयरन और सिल्वर और गोल्ड, मीन वी हैव सॉलिड एंड एलिमेंट। सपोज लेट अस टेक अप कॉपर। तो जब हम कॉपर सॉलिड लेते हैं वहां सारे के सारे सफियर कॉपर एटम्स के हैं, तो अल्टीमेटली वो लेयर्स में आएंगे, यहां फॉर्म करेंगे ए बी सो ऑन, यहां करेंगे ए बी सी सो ऑन। ऐसे करते हैं। जो में वाइड बनते हैं बीच में वहां पर कोई सफियर नहीं आता, क्योंकि अगर आपने सफियर कॉपर एटम का पैक किया है लेयर्स में, उसका इतना बड़ा साइज है कि वो सफियर सेम सफियर वाइड में नहीं आ सकता, बिकॉज वाइड्स आर सो स्मॉल इन साइज। वाइड टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, वाइड्स आर सो स्मॉल इन साइज कि जो पैक्ड आयन है, जो पैक्ड आयन का मतलब ये हुआ ये कॉपर एटम ने पैक किए हैं लेयर्स में, तो ये कॉपर एटम अल्टीमेटली लेयर्स में तो आ गए, सेम कॉपर एटम अब वाइड में नहीं आ सकते, बिकॉज वाइड का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू साइज ऑफ सफियर। तो क्लियर है, मेटालिक सॉलिड्स अगर आप लेते हैं कोई, तो उनमें ए बी सो ऑन, ए बी सी लेयर प्रेजेंट होंगी, व्हाट वाइड सारे खाली होंगे। उन वाइड्स में मेटालिक एटम नहीं आ सकते बिकॉज देयर साइज इज मच लार्जर कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड्स। बट वंस यू टॉक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, NaCl ये आयनिक सॉलिड है। अब ये भी सॉलिड है, इसमें भी सफियर कुछ लेयर्स में होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन होता है विच सफियर्स, NaCl में से किसके स्फीयर जो हैं वो पैकिंग करते हैं। रिमेंबर, जो स्फीयर लार्ज इन साइज होगा वो हमेशा लेयर्स में आता है,
और जो स्फीयर छोटा होगा वो वाइड में आएगा। लाइक NaCl में Cl नेगेटिव आयन का साइज जो है इज लार्जर देन सोडियम आयंस, एंड दैट्स व्हाई NaCl सॉलिड में क्लोराइड आयन के जो स्फीयर्स हैं दे फॉर्म लेयर्स AB और ABC सो ऑन। और में जो वाइड बनेंगे Cl नेगेटिव स्फीयर के बीच में, वहां पर छोटे एटम सोडियम आएंगे, बिकॉज कैटायंस आर मच स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू anions, and anion being smaller in size may occupy voids. You follow this point? तो जब भी आयनिक सॉलिड होगा, रिमेंबर जिस आयन का साइज लार्ज होगा वो आयन पैक्ड आयन होगा, लेयर में आएगा। जिसका साइज छोटा होगा वो आता है वाइड्स में। तो ऐसे NaCl में Cl नेगेटिव आयन जो है बीइंग लार्जर इन साइज फॉर्म लेयर्स, एंड सोडियम आयन बीइंग स्मॉलर इन साइज ऑक्युपाइंग वाइड्स। अब जब आप यूनिट सेल की फॉर्म में लेते हैं इसको, तो Cl नेगेटिव आयंस बेसिकली ये पैक्ड आयन है, और इसको अगर हम यूनिट सेल की फॉर्म में देखें, इट सीम्स टू बी ये Cl नेगेटिव आयन ऑक्युपाइंग कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, और सोडियम आयन जो है दे ऑक्युपाइंग वाइड्स। एंड क्वेश्चन है, ये जो एज सेंटर्स होते हैं, बड सेंटर होते हैं, इनको बोलते हैं वाइड्स, दे आर कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऐसे करने से स्ट्रक्चर लें, हम वहां लिखते हैं कि क्लोराइड आयंस फॉर्म cubic close packed structure, means they form CCP layers, and sodium ions occupying octahedral voids। ये तो हो गया लेयर की फॉर्म में। जो सही फॉर्म होती है सॉलिड्स की वो तो लेयर की फॉर्म में होती है। ऑल सॉलिड्स आर इन लेयर्ड फॉर्म। तो Cl नेगेटिव आयंस फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मींस ABC लेयर में आते हैं, और सोडियम आयन आते हैं वाइड्स में। बट विच वाइड्स? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। यूनिट सेल की फॉर्म में देखें अगर हम इसको, बिकॉज यूनिट सेल की फॉर्म में स्ट्रक्चर बिकम मोर सिंपल। जो Cl नेगेटिव आयन कॉर्नर्स पर है एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, मींस दे आर इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर्स, और सोडियम आयंस ऑक्युपाइंग एज सेंटर एंड बड सेंटर, मींस जो इनमें वाइड बनेंगे इनके बीच में, जब आप कॉर्नर पर लेते हैं Cl नेगेटिव आयन एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, अल्टीमेटली ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड लेयर बना देंगे। जब आप Cl नेगेटिव आयन यूनिट सेल के कॉर्नर पर रखेंगे और फेस सेंटर पर रखेंगे, अल्टीमेटली Cl नेगेटिव आयन अल्टीमेटली फॉर्म्स ABC लेयर्स, और उनके बीच में जो वाइड होंगे वहां पर सोडियम आयन आएंगे। और वाइड कहां प्रेजेंट है? वाइड होंगे एस सेंटर में, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वाइड है। कैसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड? यू कैन सी क्लियरली, बॉडी सेंटर ये वाला एटम जो है ना, बॉडी सेंटर वाला, इट is surrounded by 6 nearest neighbor sodium ions। This is sodium ion, sir. This is sodium ion body center पर है। It is surrounded by 6 nearest neighbor Cl negative ion occupying face centers। You can see clearly ये body center पर sodium ion है, and इसका एक nearest neighbor है ये face center वाला chloride ion, दूसरा face center वाला, तीसरा face center वाला, चौथा face center का, पांचवा एंड छठा। एंड यू कैन सी, अगर हम ये जो 6 फेस सेंटर वाले Cl नेगेटिव आयंस हैं, इट सीम्स टू बी दे ऑक्युपाइंग कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। तो ऐसे लगता है कि सोडियम आयन ऑक्युपाइंग सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, एंड 6 सोडियम आयंस, 6 Cl नेगेटिव आयंस ऑक्युपाइंग फेस सेंटर्स, they appear to be occupying corner octahedron। That's why this is called as octahedral void। Similarly S center जो है ये octahedral void है, ये भी बनता है 6 Cl एक्टिव के बीच में। कैसे 6 Cl एक्टिव के बीच में? एक Cl कॉर्नर का, दूसरा Cl कॉर्नर का, ये फेस सेंटर का, इधर फेस सेंटर का, ऊपर आएगा फेस सेंटर का नीचे। दिस इज आल्सो सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयंस, एंड दिस void इज आल्सो कॉल्ड octahedral void। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो है हम दो तरीके से कहते हैं। इधर वी कैन से that NaCl has face centered cubic structure, it has
cubic close packed layers of Cl negative ions with sodium and occupying octahedral layers. और यूनिट सेल की फॉर्म में we say कि Cl negative and occupying corners and center of each face and sodium and occupying centers and body center. तो ये स्ट्रक्चर है NaCl का है एंड सेम स्ट्रक्चर होता है KCl का. जैसे NaCl का है वैसे KCl का. यहाँ पर Na एटम प्रेजेंट है, वहां पर K एटम प्रेजेंट है. एंड यू कैन सी हियर दैट KCl हैज सेम स्ट्रक्चर. तो सिंस NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, and therefore only those reflections are observed for which HKL either all even or all odd. ये है ना फेस सेंटर्ड के लिए कि अगर सिस्टम कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में वही रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व होती हैं जिन प्लेन के HKL सारे के सारे आर्ट हो जाए. तो देयरफॉर वी कैन से कि NaCl में 110 रिफ्लेक्शन इज एब्सेंट बिकॉज ये सारे के सारे HKL ना आर्ट है ना इवन है. 111 इज ऑब्जर्व्ड. ये रूल के मुताबिक इट इज क्लियर नाउ that since NaCl has face-centered cubic structure and for face-centered cubic structure के लिए all those planes for which HKL all are either odd or even they show the reflections otherwise absent. 110 हो गई absent, 111 reflection observed. That's why in the picture में मैंने 111 plane लिए हैं. NaCl है face-centered cubic structure और face-centered cubic structure में 111 रिफ्लेक्शन. हेलो, अब मेरी क्लास चल रही, मैं करता हूँ फोन. सो दैट्स वाई हमने प्लेन लिए हैं 111 प्लेन. ये 111 प्लेन है. यू कैन सी दिस प्लेन इज कटिंग x एक्सिस एट 1, y एक्सिस एट 1, z एक्सिस एट 1 और ऑल दोज प्लेन जो उसके पैरेलल होंगे वो 111. तो यहाँ 111 प्लेन आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 1, ये सारे 11. इट इज सेट ऑफ 111 पैरेलल प्लेन्स. तो NaCl में वो भी प्लेन्स होंगे बट एक सेट हमने शो किया है 111 प्लेन. तो इस प्लेन से रिफ्लेक्शंस होंगी वो ऑब्जर्व होंगी. पर अगर आप इसी NaCl स्ट्रक्चर में 110 प्लेन लेंगे तो 110 प्लेन भी रिफ्लेक्शन काज करेगा बट रिफ्लेक्शन इज नॉट ऑब्जर्व, एब्सेंट होती है. वो मैंने रीजन बताया था एब्सेंट क्यों होती है. बट लेट अस टॉक ऑफ दैट प्लेन जिसकी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती है. तो 111 प्लेन की रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगी एंड आई हैड शोन NaCl स्ट्रक्चर में कि ये 111 सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है. यू कैन सी 111 planes contains only Cl negative ions and sodium ions lying midway between the planes. You can see here. ये प्लेन है 111. तो जो Cl नेगेटिव आयंस हैं ये इसके प्लेन पर प्रेजेंट है. अब ये प्लेन देखो अगला 111. Cl नेगेटिव आयन मींस ब्लू सर्कल्स. तो 111 प्लेन्स ओनली कंटेन Cl नेगेटिव आयंस और एक 111 प्लेन में और सेकंड 111 प्लेन के बीच में ये सोडियम आयन मिडवे में प्रेजेंट है. यू कैन सी क्लियरली. ये बॉडी सेंटर वाला जो सोडियम आयन है इट इज लाइंग मिडवे बिटवीन दीज टू प्लेन्स 111 11. माय क्वेश्चन इज बेसिकली कि 111 planes contain only Cl negative ions whereas sodium ions they lie midway between these planes. और मैंने पीछे बताया था that what happens कि जो प्लेन्स जो एटम प्लेन के ऊपर हो they cause scattering और जो एटम्स इन बिटवीन द प्लेन्स हो they also cause scattering. बट दोनों से स्कैटरिंग होती है that cause destructive interference. अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन कैंसिल हो जाती है. बट रिफ्लेक्शन तब कैंसिल होगी इफ रिफ्लेक्शंस caused by atoms on the plane is equal to the reflection caused by atom midway between the planes. बट इसमें ऐसा है नहीं.
111 planes contain Cl negative ion, sodium ions midway between the planes. This means that a reflection from Cl negative ion is exactly out of phase with that of sodium ions. तो दोनों की रिफ्लेक्शन जो होगी वो बिकॉज एक Cl नेगेटिव प्लेन्स के ऊपर प्रेजेंट है, सोडियम आयंस मिडवे बिटवीन द प्लेन्स हैं, तो दोनों की रिफ्लेक्शन होगी आउट ऑफ फेज, दे विल कैंसल, बट बिल्कुल कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, आज हमने किया था कि स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन atomic number, it depends upon number of electrons present. Now Cl negative ions contain 18 electrons, sodium ion has 10 electrons, so both have different scattering power, because scattering power of Cl negative ion should be higher than sodium, because it contains 18 electrons, sodium contains 10 electrons, and therefore दोनों की रिफ्लेक्शन आउट ऑफ फेज है, बट बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगी, दे पार्टली कैंसिल्ड, स्कैटरिंग पावर बराबर नहीं है। अगर स्कैटरिंग पावर दोनों की बराबर होती, जैसे Cl एक्टिव आयन अगर प्लेन में होता तो मिडवे प्लेन के पीछे Cl एक्टिव आयन होता, तो बोथ एटम्स ऑक्यूपाइंग प्लेन्स एंड एटम्स मिडवे बिटवीन द प्लेन्स, दे हैव सेम स्कैटरिंग पावर, बट स्कैटरिंग इज आउट ऑफ फेज, देन दैट विल कैंसल, रिफ्लेक्शन ऑब्सेंट होती, यहां रिफ्लेक्शन ऑब्सेंट नहीं होगी, बट रिफ्लेक्शन वीक ऑब्जर्व होगी, because Cl negative ions में रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, that is out of phase than the reflection caused by sodium ions, and since both have different scattering power, therefore reflection partially cancel, and therefore intensity of 111 reflection is fairly weak. अब क्वेश्चन क्या था, हम पीछे ये कह रहे थे कि जिन प्लेन्स के ऊपर हैवी एटम्स हो, जिन प्लेन्स के ऊपर हैवी एटम्स हो, दे शुड गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस, और दे शुड गिव राइज टू इंटेंस रिफ्लेक्शंस ऑफ हाई इंटेंसिटी। पर मैंने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि एक प्लेन पर हैवी एटम प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन तो वो देगा स्ट्रॉन्ग, बट दैट रिफ्लेक्शन माइट बी कैंसल्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम अदर प्लेन्स आल्सो। दैट्स व्हाई सेम केस हियर आल्सो कि 111 प्लेन्स के ऊपर हैवी एटम Cl एक्टिव आयन प्रेजेंट है, तो इससे रिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रांग आनी चाहिए थी, इंटेंसिटी ज्यादा हाई आनी चाहिए थी, बट वीक आ रही है, बिकॉज इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो सोडियम आयन से कैंसिल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई ऑल्दो 111 planes contains heavy atoms, but reflection obtained is not strong, that is fairly weak, because reflection is partially cancelled by sodium ions which are lying midway between these planes, and therefore intensity of 111 reflection in materials that have rock salt structure is related to difference in atomic number of anion and cation. This is very important point कि 111 reflection की intensity किससे related होती है, but remember 111 reflection in material which have a rock salt structure, which have NaCl structure, उस cases में 111 reflection की इंटेंसिटी जो है वो रिलेट करती है डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन। जैसे यहाँ पर एनायन Cl नेगेटिव है, कैटायन सोडियम आयंस हैं, तो जितना दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर का, उतनी रिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग आएगी, और जितना डिफरेंस दोनों का एटॉमिक कम होगा रिफ्लेक्शन उतनी वीक आएगी। बट अगर दोनों में एनायन कैटायन में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो रिफ्लेक्शन ऑब्सेंट भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो टू नेक्स्ट पोटेशियम क्लोराइड दैट हैव सेम स्ट्रक्चर एज के NaCl की तरह, और उसमें भी 111 इंटेंसिटी हो, बट यहाँ 111 रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी 0 आती है, क्योंकि यहाँ भी बिकॉज स्ट्रक्चर NaCl की तरह ही है। Cl नेगेटिव आयन जो है और K+ आयन जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, बोथ कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, and so their scattering power is same. अब KCl मटेरियल में Cl एक्टिव आयंस जो हैं they occupying 111 planes, और पोटेशियम आयन they are coming midway between 111 planes, because scattering power K+ की और Cl एक्टिव की same है, because they contain same number of electrons, and therefore scattering power same, but दोनों की scattering out of phase है, fully cancelled, and therefore intensity becomes 0.
तो very important point, NaCl, KCl have same structure, but NaCl में 111 रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी वीक आती है, KCl में 111 रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी 0 आती है. Similar effects may also be found in other simple crystal structure. Cesium chloride has body-centered cubic structure similar to alpha iron. CaCl का body center structure है similar to alpha iron. 1-0 reflection is systematically absent in alpha iron. What is an observed reflection with CaCl? आप क्वेश्चन क्लियर है कि जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर BCC है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसमें कौन सी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती हैं? उसमें वो ऑब्जर्व होती हैं, और एब्सेंट कौन सी होती हैं? वो ऑब्जर्व होती हैं जिसमें H + K + N इज 2n इवन नंबर. जिन NaCl का स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड था, तो उन्हीं प्लेन से रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होंगी जिन प्लेन के लिए HKl सारे के सारे 8 या इवन होंगे. बट अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन टू बी ऑब्जर्व्ड इज H + K + L शुड बी इवन. उस फार्मूले के बेस के ऊपर 1-0-0 रिफ्लेक्शन शुड बी absent in alpha iron also, in CaCl also, because both alpha iron and CaCl has body center cubic structure. That's why the body center cubic structure किसी भी कंपाउंड होगा उसमें 1-1-1-0 रिफ्लेक्शन इज absent होती है. बट यहां पर ऐसा नहीं है. alpha iron and CaCl both have BCC structure. 1-0-0 reflection should be absent in alpha iron also, in CaCl also. But 1-0 reflection alpha iron में तो absent है, it is clear, correct? But it is an observed reflection with CaCl. The reason is, जब हम लेते हैं body centered alpha iron, उसका मतलब क्या है? body centered alpha iron का मतलब हुआ iron atoms occupying या iron spheres occupying corners and body center, and CaCl also has structured body center. तो Cl negative ion occupying corners and Cg ion occupying body. because यहाँ पर ये एलिमेंट है आयरन, यहाँ सारे सफीर एक जैसे हैं, तो जो कॉर्नर पर सफीर आएंगे वही सफीर आएंगे बॉडी सेंटर के ऊपर. बट सीजियम क्लोराइड में 2 टाइप के सफीर्स हैं, एक सीजियम का, एक क्लोराइड का. तो क्लोराइड आयन आएंगे कॉर्नर के ऊपर और सीजियम आयन आएंगे बॉडी सेंटर के ऊपर. तो दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर दिखाई देता है. फर्क कितना है? अल्फा आयरन में सारे एटम सेम है, वही एटम कॉर्नर पर है, वही एटम बॉडी सेंटर पर है. बट सीजियम क्लोराइड में Cl एक्टिव आयन कॉर्नर पर है, सीजियम आयन बॉडी सेंटर पर है. अब यहां पर भी क्या है? और 1-0-0 रिफ्लेक्शन जो है वो क्यों एब्सेंट अल्फा आयरन में होती है? बिकॉज जो 1-0-0 प्लेन, अगर स्ट्रक्चर का यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ शो नहीं किया है, बट जब आप 1-0-0 प्लेन शो करेंगे यूनिट सेल में, तो आयरन एटम जो कॉर्नर के ऊपर हैं वो 1-0-0 प्लेन पर आ जाएंगे. ऑल एटम जो कॉर्नर वाले हैं वो 1-0-0 प्लेन पर आएंगे, और जो आयरन एटम बॉडी सेंटर के ऊपर हैं वो इन बिटवीन द प्लेन्स आएंगे. एंड कैन क्लियर कि जो एटम्स प्लेन्स पर होते हैं और जो इन बिटवीन द प्लेन्स होते हैं, बोथ कॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. रिफ्लेक्शंस होती हैं डिस्ट्रक्टिव, and therefore net reflection is cancelled. And second is because atoms occupying body center are in between the planes, and atom occupying planes, they are same, they have same scattering power and show destructive interference, and therefore net reflection is 0. पर CaCl में देखें तो यहाँ पर जो 100 जो प्लेन्स होंगे वो ऑक्युपाई करेंगे कॉर्नर के Cl नेगेटिव आयंस, और सीजियम आयन जो होंगे वो आएंगे इन बिटवीन द प्लेन्स. बट बिकॉज CS एंड Cl की दोनों की स्कैटरिंग पावर सेम नहीं है,
ऑल्दो रिफ्लेक्शन जो Cl एक्टिव आयन से होगी ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स, और जो सीजियम आयन से होंगी बिटवीन द ऑक्यूपाइंग विच आर इन बिटवीन द प्लेन्स 100 प्लेन्स, वो रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, पर फुली कैंसिल नहीं होगी, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयन इज डिफरेंट, एंड देयरफॉर वीक रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगी। एंड यू कैन सी क्लियरली कि 1 रिफ्लेक्शन इज absent in alpha iron, observed reflection in CaCl, because scattering power of C and Cl active are different. This is not equal to Cl active ion. बट अगर आप अल्फा आयरन लेंगे तो वही एटम बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर मीन इन बिटवीन द प्लेन्स, और वही एटम्स हैं प्लेन्स पर, प्लेन मीन कॉर्नर्स के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई two atoms occupying planes and in between the planes are same in alpha iron and they have same scattering power, cancelled. CaCl में ऐसा नहीं होगा। तो that's why कि 1 reflection is absent in alpha iron, observed in CaCl, and both alpha iron and CaCl seems to be similar in structure. फर्क इतना है कि वहां पर भी एटम्स कॉर्नर ऑफ बॉडी सेंटर पर हैं, CaCl में भी एटम्स कॉर्नर बॉडी सेंटर पर है। एक ही फर्क है कि वहां पर वही एटम आयरन एटम कॉर्नर पर है, वही आयरन एटम बॉडी सेंटर पर है। CaCl में Cl नेगेटिव आयन कॉर्नर पर है, वो सीजियम बॉडी सेंटर पर, एंड दैट्स व्हाई स्कैटरिंग पावर डिफरेंट होने से 1 रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती है। एंड नाउ आई हैव वन क्वेश्चन हियर, do you think our rule fails here? Because CaCl and alpha iron have both body center cubic structure, and हमारा रूल ये था कि any material having BCC structure वही रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व होंगी जिनके लिए H + K + L होगा इवन। अब यहां पर प्लेन 100 है, H + K + L तो आड़ आ रहा है, रिफ्लेक्शन एब्सेंट होनी चाहिए। अल्फा आयरन में तो एब्सेंट है, ये तो करेक्ट है, रूल के मुताबिक एब्सेंट है, बिकॉज H + K + L इज आड़ आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन एब्सेंट होगी। बट ये तो प्रेजेंट है CaCl में, बट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए थी, रूल फेल हो रहा है इसका मतलब। तो डू यू थिंक कि वो रूल जो है वो CaCl में फॉलो नहीं हो रहा? एनीवन हु कैन टेल मी कि देखो CaCl और अल्फा आयरन में दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर दिखाई देता है, दोनों में एटम कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है, वो फर्क एक ही है, अल्फा आयरन में वही एटम कॉर्नर पर, वही बॉडी सेंटर पर, और सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कॉर्नर पर है, सीजियम बॉडी सेंटर पर, इतना फर्क है। तो हमने जो रूल पीछे किया था कि रिफ्लेक्शन इफ एनी मटेरियल है BCC स्ट्रक्चर, तो रिफ्लेक्शन वही ऑब्जर्व होंगी जिनका H + K + L इवन होगा। अगर H + K + L आड आता है, रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए, इसलिए 100 रिफ्लेक्शन जो है अल्फा आयरन में एब्सेंट है, रूल फॉलो कर रहा है बिकॉज H + K + L इज आड। बट यही रिफ्लेक्शन जो है वो CaCl में तो ऑब्जर्व हो रही है, तो यहां रूल क्यों नहीं लग रहा? सर ये प्रिमिटिव Anyone? सर प्रिमिटिव ये BCC है, ये तभी लग रहा है यहाँ पे CaCl का क्रिस्टल। सर क्योंकि हाँ, प्रिमिटिव बोलिए। में हमें सर प्रिमिटिव जो आपने बोले थे ना वो सिस्टम्स, उसमें तो सारी रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती थी, तो हाँ, हाँ, हाँ। CaCl जो है ना ये प्रिमिटिव ही होगा फिर BCC, प्रिमिटिव BCC, क्योंकि प्रिमिटिव के मतलब क्यूबिक वन में तो प्रिमिटिव भी होते थे ना। नहीं, बट you tell me one thing, do you think CaCl has BCC structure? यस सर। पहला इशू तो ये है कि क्या CaCl का स्ट्रक्चर BCC है? It is answer is no, सिंपल because क्यूबिक। it is cubic. For a structure to be BCC, same atom occupying corner and same atom should occupying body center also, तब ये बनता है BCC। अल्फा आयरन में क्लियर है
ये BCC है, बिकॉज वही एटम कॉर्नर पर हैं, वही एटम्स हैं एट द बॉडी सेंटर. बट CaCl सीम्स टू बी कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू अल्फा आयरन है, बट इट इज नॉट BCC. Structure of CaCl simple primitive, because Cl active and occupying corner only, does not occupying body center, and therefore this is not regarded as बॉडी सेंटर. BCC. This is simply primitive. और primitive में क्या होता है, all reflections are observed. इसलिए 1-0 रिफ्लेक्शन जो है वो CaCl में ऑब्जर्व होती है. अगर हम ये कहते हैं कि CaCl हैज BCC स्ट्रक्चर, फिर हमारा रूल फेल होता है, बट इसका है नहीं. इट हैज क्यूबिक परमिटिव स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई आवर रिफ्लेक्शंस इन CaCl आर ऑब्जर्व्ड. हमने CaCl क्यों लिया है, बेसिकली बिकॉज कंपेयर करने के लिए कि CaCl एंड अल्फा आयरन जो है लुक्स लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर. उसमें भी एटम्स कॉर्नर और बॉडी सेंटर पर है, यहाँ भी है. बट हमारा कहने का मतलब ये है कि 1-0 रिफ्लेक्शन उसमें ऑब्जर्व होती है, उसमें नहीं होती. उसका रीजन यही है कि वहां पर एटम्स कॉर्नर पर अल्फा आयरन में, बॉडी सेंटर पर सेम है. दे हैव सेम स्कैटरिंग पावर एंड रिफ्लेक्शन विल कैंसल आउट. पर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में एटम्स ऑक्युपाइंग 1-0 plane, that is Cl negative ions, and atom which are midway between 1-0 plane, that is cesium ions. Although cesium ion reflection जो है ये destructive cause करेंगे relative to Cl negative, but because both have different scattering power, net reflection is not cancelled out. It has weak reflection. So students, this is all about, this is very important lecture है ये, and very interesting in solids. Then see you next time. Okay. So. Okay, all the best. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Okay.